Hello, student. Hello, everyone. As you have written the EIT test 1 for the month of July in the 2024, okay. So, as you know that every month has EIT exam. So, this is your first EIT, and I hope all of you have done it very beautifully, and you are going to score a very good marks. Okay. In that entire paper in the biology EIT, okay, there were some questions where you might feel okay, so it is difficult. ओके तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको लगता है कि नहीं भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टेकन हियर टू डिस्कस इन दिस सेशन okay in this 1 hour session we are going to discuss more than 20 questions. Please be attentive and answer in your mind. Okay, when I take the question and when I show you, look at the options, keep the option in the mind. Okay, as soon as we are going to discuss, the concepts are going to be cleared for you. Okay, so we are going to start discussing the questions now. So please be attentive and take a note and a pencil with you. Clear? Chalo, let's move ahead then. For those people who are looking at me for the first time, my name is Ghazala Firdaus and I'm one of the biology faculty in Avanti Fellows. Okay, chalo, let's start then. Yeah. So there's a first question on the screen. An angiospermic male plant with 24 chromosome in its pollen mother cells is crossed with female plant bearing 24 chromosomes in its root cell. What would be the number of chromosomes in embryo and endosperm respectively formed after this cross? Options are 22 and 42, 24, 24, 48, 72, 24, 36. Okay, I'm going to give you only 15 to 20 seconds. Look at the question, look at the options and tell me. Okay, yes. I'm not giving you much time here. Just look at the options and let me know. All right. So, beta, as you can see here, an angiospermic male plant with 24 chromosomes. तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 24 chromosomes हैं, ओके, डिप्लॉयड है. ठीक है, तो ये डिप्लॉयड है क्योंकि इफ कैन सी इन इट्स पोलन मदर सेल, तो पोलन मदर सेल की बात हो रही है तो डेफिनेटली दे आर डिप्लॉयड. ओके, सो 24 एंड दिस इज क्रॉस्ड विद द फीमेल प्लांट बेरिंग 24 क्रोमोसोम्स. अगेन तो इसको 24 के साथ हमने क्रॉस किया. सो व्हाट इज द जाइगोट इज गोना बी, जाइगोट इज आल्सो गोना बी 24 बिकॉज इट इज अ डिप्लॉयड. ठीक है, तो पोलन मदर सेल 24 है तो हमको जाइगोट भी 24 ही मिलेगा इन द डिप्लॉयड फॉर्म. तो नाउ व्हाट विल बी द एंडोस्पर्म? तो एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉयड होता है ना. सो एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यू एड 24 प्लस 2, सॉरी 12. ओके, तो 12 इज हैप्लॉयड हियर. ठीक है, तो हैप्लॉयड के लिए 12 हो रहा है. ओके, तो डिप्लॉयड के लिए कितना होगा? ओके, तो डिप्लॉयड के लिए होगा 24 और ट्रिप्लॉयड के लिए होगा बेटा 36. ओके, सो डिप्लॉयड 24, triploid 36. Okay, so triploid 36, you can see here option D is the correct answer. Okay, so 101 option D is the correct answer. I hope it is easily understood to every one of you. Okay, chalo, let's move ahead then. So here as you can see solution, तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है बेटा. ओके, सो डिप्लॉयड पोलन मदर सेल हैव 24 chromosome, hence the pollen grains, the haploid will be 12. Okay, and the male gametes will have the 12 chromosome. When they bind, it will make a diploid zygote of 24 chromosomes. जब triple fusion होगा तो it will be a triploid and additional number of 12. Okay, 24 and 36 is the correct answer. Okay, next. So a health disorder that results from the deficiency of thyroxine in adults and characterized by. So here you can see 1, 2, 3. A low metabolic rate, increase in body weight, tendency to retain water in tissues. So options are Graves' disease, simple goiter, myxoedema, and the cretinism. ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन है बेटा, you have to choose the correct one from here. Okay, so from here if you can see, I will give you some time. ठीक है, आपको मैं टाइम दूंगी, लेकिन आप ना भूल गए होंगे कि हाँ भी ग्रेव्स डिसीज क्या होता है, गॉइटर क्या होता है. ओके, मिक्सोडेमा, क्रेटिनिज्म. सो ट्राई टू रिमेम्बर दोस कॉन्सेप्ट्स, याद करने की कोशिश कीजिए एंड देन आंसर इट. ओके,
So please choose a correct answer and keep it in mind. Yes. Okay. So I feel like I have given you enough time. So let's discuss here. Okay. So myxedema is also called as, Gall's disease, which occur due to the deficiency of thyroxine in adults. Okay. तो deficiency of thyroxine in adults के वजह से होता है ये disease. Okay. It causes low BMR. Okay. And low body temperature, tendency to retain water in tissues. Okay. Reduced heart rate, pulse rate, blood pressure and cardiac output, low sugar, iodine लेवल इन द ब्लड, ये सारी चीजें होती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडिमा, दैट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट कॉजेस द फेशियल टिश्यूज टू स्वेल. तो ये सारी चीजें, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मिक्सोडिमा, दैट इज गर्ल्स डिजीज. Okay, so decrease in secretion of thyroxine hormone from thyroid gland causes hyperthyroidism. Not hyper, it's hypo. Okay, तो हाइपर एंड हाइपो में फर्क है बेटा. देखो, जो डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से, विच इज हाइपोथायरॉइड. हाइपो मीन्स डिक्रीज, हाइपर मीन्स इंक्रीज. ओके, नाउ व्हाट इज गॉइटर? तो गॉइटर इज कॉज्ड बाय द लोअर इनटेक ऑफ आयोडीन थ्रू डाइट. ओके, उनके खाने में अगर आयोडीन कम रहा तो गॉइटर होता है. क्रेटिनिज्म is occur due to the hyposecretion of thyroxine during the growth years of birth. ठीक है, तो बर्थ के जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं, ओके, व्हेन द बेबी स्टिल इन द वूम, ओके, प्री नेटल कंडीशंस में, तो उस टाइम पे बेटा अगर थायरॉक्सिन कम रहा, okay, तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ क्रेटिनिज्म. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स. नाउ यू कैन लुक हियर. ओके, अच्छा, ग्रेव्स डिसीज मैंने नहीं बताया ना आपको. बेटा ग्रेव्स डिसीज इज वेरी सिंपल, विच इज कॉज्ड बाय द हाइपरथायरॉइडिज्म. ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. क्लियर? तो अब आप इनको देखो बेटा, लो मेटाबॉलिक रेट, increase in body weight and the tendency to retain water. So these are all the symptoms of myxedema. Okay, so C is the correct answer for this question. Clear? चलो, सो मिक्सोडिमा का क्लियर है ना. एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर. ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए. प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल. प्रोस्टेट बार्थोलिन्स एंड द सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल्स बार्थोलिन्स, प्रोस्टेट काउपर एंड द सेमाइनल वेसिकल. सो नाउ यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस एंड टेल मी. इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, बहुत ही कम टाइम लगेगा. Okay, I'm not going to give you much time here. Okay, so accessory glands of male reproductive system are very simple, very easy, nothing to worry. क्योंकि अभी आपका ही सिलेबस है. ओके, ट्वेल्थ में ही आपने अभी पढ़ा है, वेरी इजी. ओके, चलो. So prostate, Cowper's and seminal vesicle are the important ones. ठीक है. So here you can see accessory glands in the reproductive system, or the glands that support the reproductive process. Okay, by producing fluids and substances that aid the transportation, nourishment and protection of gametes. ठीक है, जो sperm बनते हैं बेटा, उनके मोशन के लिए, नरिशमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है कुछ सब्सटेंसेस, फ्लूइड्स बने. Okay, so these fluids are not directly involved in the production of gametes. Okay, तो गैमेट के प्रोडक्शन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते. दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लैंड्स. तो कौन से ग्लैंड्स हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, Cowper's gland, और also called as bulbourethral glands. Okay, जो बार्थोलिन है, it is a part of female reproductive part. Hence, B is the answer. Prostate, Cowper, also called as bulbourethral, and the seminal vesicle. Okay, बहुत easy question था. चलो, next question. Which of the following statements are false or true? Calcitonin regulates the metabolism of calcium. Oxytocin stimulates contraction of uterine muscles during birth. Graves' disease is caused by malfunctioning of adrenal gland. ADH stimulates absorption of water and increase the urine production. तो यहाँ पे options हैं. Okay, I'm going to give you 20 seconds here. थोड़ा देखो statements को, options को, and keep the option ready in your mind. Yes. All right. All right.
सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बेटा, जो हाँ डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। True. Okay. So calcitonin is produced by the thyroid gland that helps to regulate the calcium levels in the body by inhibiting the bone resorption and promoting the excretion of calcium in the urine. समझ लो बेटा, अगर यूरिन में कैल्शियम चला गया तो कितना कैल्शियम जो है हमारा वो निकल जाएगा हमारी बॉडी से। सो कैल्शियम इज अ वेरी क्रूशियल इन द बॉडी, एंड इसके बगैर बहुत कुछ नहीं होता है। तो कैल्सिटोनिन इज द वन दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। ओके चलो, देन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रन मसल्स ड्यूरिंग बर्थ। ये आपने अभी अभी पढ़ा है। ओके, सो इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आपने क्या पढ़ा है बेटा? ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स एंड रिलैक्सिन हेल्प्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स, सो दैट द हेड ऑफ द बेबी विल पुश्ड आउट, एंड उससे क्या हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाए। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड हेल्प्स इन द मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। दो काम करता है बेटा ऑक्सीटोसिन, एक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है लेबर के टाइम में, दूसरा मिल्क इजेक्शन थ्रू द निपल्स। ठीक है, देन ग्रेव्स डिसीज इज कॉज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। नो, ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया बेटा, ग्रेव्स डिसीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट होता है एंड इट लीड्स टू द हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये ग्रेव्स डिसीज वाला, वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नाउ ADH स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन। ये भी गलत है, क्यों मैं बताती हूँ बेटा। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो बढ़ाता है, बट जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है वो कम करेगा। ओके, इट रिड्यूसेस द यूरिन प्रोडक्शन, यही तो काम है। डायूरेसिस मींस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मींस द यूज यूरिनेशन को रोकने वाला हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता चला बेटा, जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, सेकंड टू स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, सो हेंस आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, so coming to the next question. So 110 question, seeds produced by hybrid varieties will maintain hybrid triads indefinitely if seeds are produced through dash methods. Okay, so seeds are produced by dash. uh, तो आपको यहाँ पे पता लगना चाहिए बेटा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स सॉल्व करे होंगे तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिला होगा कहीं पे तो। ओके, तो यहाँ पे न्यूसिलस है विच इज डिप्लॉयड, एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट मायोसिस हुआ है, दैट मीन्स नो रिडक्शनल डिवीजन। देखो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बना, रिडक्शन हुआ है, मायोसिस हुआ है, बट यहाँ पे भी नहीं हुआ मायोसिस, नो मायोसिस, एंड यहाँ पे भी नो मायोसिस, दैट मीन्स इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मुझे मैम अपोमिक्सिस क्या है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, एक एज यूजुअल क्या होता है, एक नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे मायोसिस होता है, सो वो क्या होता है, एमएमसी रहेगा, मेगास्पोर मदर सेल विच विल अंडरगो मायोसिस। ओके, वो मायोसिस करेगा टू गिव द हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ओके, उन हैप्लॉइड 4 मेगास्पोर्स में 3 डीजेनरेट होंगे, एक फंक्शनल रहेगा, दैट वन फंक्शनल मेगास्पोर विल टर्न इनटू अ हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है वो एक्सेल के साथ स्पर्म में बाइंड करेगा। ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्सेल रहेगा, स्पर्म विल मीट, जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन प्लांट। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पोमिक्सिस में क्या होता है, पोमिक्सिस में ये होता है बेटा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर तो बनेगा, बट वहां पे मायोसिस नहीं हो रहा है, नो रिडक्शनल डिवीजन, दैट मीन्स नो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर डिप्लॉयड है एमएमसी तो मेगास्पोर भी डिप्लॉयड ही रहेगा। अब एम्ब्रियो साइक भी डिप्लॉयड रहेगा, एक्सेल भी डिप्लॉयड रहेगा, तो यहाँ पे एक्सेल ही डिप्लॉयड है तो इसको स्पर्म की क्या ही जरूरत है ना। जब एक्सेल हैप्लॉइड होगा तो तब स्पर्म आएगा, उसका भी हैप्लॉइड ही नेचर वो देगा, तो तब डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। बट यहाँ पे एक्सेल ही डिप्लॉयड है तो सीड भी डिप्लॉयड रहेगा, प्लांट भी डिप्लॉयड रहेगा। सो हियर नो पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो मेल पार्टिसिपेंट। के क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस ही नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाट यू कैन से हियर, तो बी में भी नो मियोसिस, सी में नो मियोसिस,
सो ये जो एबिलिटी है बेटा ये अपोमिक्सिस की है, और इस अपोमिक्सिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि जो नॉर्मल सीड होता है ना, वो क्या होता है बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब तुम क्वेश्चन पढ़ो तुमको समझ आएगा। सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिड वेराइटीज विल मेंटेन द हाइब्रिड ट्राइट्स। ओके, यूजुअली जो हाइब्रिड ट्रेड्स हैं वो नॉर्मली मेंटेन नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपने बड़ी मुश्किल से क्रॉस करवाया, एक हाइब्रिड सीड निकाला बेटा, और वो उस हाइब्रिड सीड को आपने सो किया और उसके सीड्स को आप फिर रखोगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उसमें हाइब्रिड नेचर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हाइब्रिड हमारे पास जो सीड है, उसका जो एबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन में आना है, क्वालिटीज नेक्स्ट जनरेशन में आना है, तो अपोमिक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं हाइब्रिड ट्रेड्स के वो कैरी ओवर होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज कॉज्ड बाय अपोमिक्सिस। ओके, चलो। सो हियर देखो बी एंड सी में हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली चूज एन आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, दैट वुड बी डी, दैट इज बी सी। ठीक है, तो बी में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 115, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, या सो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, formation of interfascicular cambium, secondary xylem, trachary element, and these are the options. Okay, so I'll give you some 15 seconds of time. Take your time and try to answer the question. Remember plant growth and hormones, वो वाला chapter in from the plant physiology, वहां का question है ये। ठीक है, very easy. But you have to remember the concepts. See, if you know the concepts, you have revised multiple number of times, तब easy रहेगा। अगर आपको कभी तो याद किया था, पढ़ा था, फिर भूल गए, फिर छुआ ही नहीं उसको, तो ये फिर problematic हो जाता है। Even though if you are clear with the concepts, for biology there are so many things to remember, तो आपको बार बार revision करना पड़ता है। When you do the revision again and again, so then the concepts will stick in your mind. Okay? हाँ, चलो अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सो डिफरेंशिएशन इज व्हाट द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड। ओके, स्पेशलाइज्ड बनते हैं, मतलब मेरिस्टमैटिक सेल से ये बनते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे मेरिस्टम था, वो उससे बन गया कोलनकेमा, पैरेन्केमा, फिर स्क्लेरेन्केमा। पैरेन्केमा, कोलनकेमा ऐसे सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दे हैव देयर पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। ठीक है, चलो अब डी डिफरेंशिएशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच स्पेशलाइज्ड सेल्स लूज देयर स्पेशलाइजेशन एंड बिकम अनस्पेशलाइज्ड स्टेट। मतलब अब समझ लो पैरेन्केमा बना है, अब ये जो पैरेन्केमा है ना, ये अपना जो स्पेशलिटी छोड़ के फिर से मेरिस्टम बन रहा है। ओके, फिर से वापस से मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी लेके आ रहा है, दैट इज एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल था वो अगेन स्पेशलाइज होके पैरेन्केमा हो रहा है। ठीक है, तो डी डिफरेंशिएटेड सेल जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिगेन किया था, अब वो अगेन स्पेशलाइज्ड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो रीडिफरेंशिएशन का वेरी बेस्ट एग्जाम्पल एंड द डी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंशिएशन के लिए सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम में स्पेशलाइज्ड सेल्स बन रहे हैं। डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दे आर गेनिंग, ओके, रीगेनिंग द एबिलिटी टू डिवाइड, सो दैट इज केम्बियम। कोई भी केम्बियम की बात करो, नॉट जस्ट इंट्राफिसिकुलर और इंटरफिसिकुलर, कोई भी केम्बियम की बात हो, तो वो क्या होता है बेटा, द स्पेशलाइज्ड सेल्स रीगेन द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम। ओके, देन रीडिफरेंशिएशन क्या है, ट्रेकेरी एलिमेंट्स का एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं दे गेन द स्पेशलाइजेशन। क्लियर, तो ये आपको देखने के बाद आप ये आराम से कह सकते हो कि इसका आंसर डी है, क्योंकि उसी के तो एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे वही तो एग्जांपल्स दिए हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन हियर, देयर मस्ट बी कंफ्यूजन, इजी क्वेश्चन है। ओके, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो क्या स्टेटमेंट्स हैं, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। Okay, the cells of endosperm tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing pollens. Okay, in the most common type of endosperm development, pen undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm.
द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ना मैंने क्लासेस में भी किया है। ओके तो मैंने क्लासेस में भी किया है एंड दिस क्वेश्चन वी हैड सॉल्व सो मेनी टाइम्स, तो इट्स वेरी इजी। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि वेदर यू रिमेम्बर इट और नॉट। ओके सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको चूज करना है। चलो एक एक स्टेटमेंट करके हम देखते चलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेटिवली टू फॉर्म द डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। नो, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है बेटा, डिप्लॉयड नहीं। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स, बिल्कुल रिजर्व फूड मटेरियल से भरा होता है। एंड यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन। नो, सब ठीक है बट ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन में यूज नहीं होता, डेवलपिंग या फिर ग्रोइंग एम्ब्रियो में यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई एंड दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन। ओके तो उनमें बेटा जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो वेरी फेमस है। ठीक है, बहुत ही फेमस टाइप का डेवलपमेंट है ये। ओके तो तीन कौन से हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द हिलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर इज अ वेरी कॉमन वन। नाउ द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म है? नहीं, नो, ये एक्चुअली उल्टा दिया है बेटा। व्हाइट कर्नल को सेल्यूलर एंडोस्पर्म होना चाहिए था एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को ये क्या होना चाहिए था, कोकोनट वाटर होना चाहिए था। ठीक है, सो सेल्यूलर एंडोस्पर्म इज द व्हाइट कर्नल, जो मलाई है वो सेल्यूलर है और जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, एक ही स्टेटमेंट सही है बेटा, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेंस आई हैव चूजन ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको, बताइए। there शुड बी नो डाउट। ओके, जो मैंने बताया वही यहाँ पे भर भर के लिखा है, वेरी सिंपल वेरी इजी। ओके, जो ऑप्शन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो और फोर स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए हैं, तो यू हैव टू चूज द टू अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दो कोई करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको चूज करना है। ठीक है, चलो आई विल गिव यू सम 15 सेकेंड्स ऑफ टाइम, रीड द स्टेटमेंट्स, पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट एंड देन विल डिस्कस। ओके, सो हैव गिवन एनफ टाइम, तो अब हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं बेटा। ओके, सो जिफ्ट में क्या बता रहा है कि जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियस ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओके तो ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके चलो हम लोग सॉल्यूशंस में देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो करेक्ट स्टेटमेंट था, क्यों? क्योंकि जो जाइगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब में अप टू 8 ब्लास्टोमियस तक ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एंड देन व्हाट इज जिफ्ट, जिफ्ट इज इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, लेकिन ये जो है बेटा ये आपको पता होनी चाहिए कि इट इज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियस। ठीक है, चलो देन इक्सी, व्हाट इज इक्सी, अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। नहीं, ये गलत है। डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली एग सेल में इंजेक्ट होता है। ठीक है, सो एग आप पकड़ के रखो, ठीक है, एक एग है तो इसमें डायरेक्टली आप इंजेक्ट कर रहे हो स्पर्म को। ठीक है, थ्रू द इंजेक्शन मेथड। ओके तो ये है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन IUI के इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसेमिनेशन, यहाँ पे देख लो, द सीमेन कलेक्टेड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता, एग में जाता है। द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू यूट्रस और इन द वेजाइना। ओके, तो मुझे अब बताइए बेटा आपको ये क्या लगता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो सीमन है वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस हो रहा है, इधर डोनर का हो सकता है या फिर हस्बैंड का हो सकता है, इनटू द विजाइना और यूट्रस। सो दो स्टेटमेंट हमको करेक्ट मिल गए अभी तक, ये एंड सी वाले स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज गिफ्ट। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ जाइगोट कलेक्टेड, नो। को गिफ्ट माने बेटा गैमीट। तो जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज एन फर्टिलाइज्ड एग। हमको अनफर्टिलाइज्ड एग होना चाहिए, उसको गैमेट कहते हैं हम लोग। तो गैमीट का ट्रांसफर होना चाहिए इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ना कि जाइगोट का। ठीक है, तो इसीलिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो दो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हो गए बेटा? ये एंड सी। हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct regarding electrical synapse? ओके, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के ऊपर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट बैठेंगे? प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज proximity at electric synapse. Electric current is involved in the transmission of impulses. Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission is always faster in electric synapse than the cross chemical. Electric synapse are rare in our system. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट देन इट इज इजी। इफ यू डोंट रिमेंबर फिर तो यार गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। बेटा जो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, दे आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एट इलेक्ट्रिक सिनेप्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि दोनों ही बहुत ही क्लोज होते हैं। देखो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ये भी बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में हेल्प करता है। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अगेन गैप जंक्शंस के थ्रू हेल्प होगा। देन transmission of an impulse across electrical impulse synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, द ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट एंड डायरेक्ट, सिमिलर टू द कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन। ठीक है, देन impulse transmission is always faster in electric synapse than the chemical, ये भी ठीक है। ओके, मुझे याद है, मैंने पढ़ाया है। आई क्लियरली रिमेम्बर जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स है वो हमेशा फास्टर ट्रैवल करता है than the chemical one. ओके, एंड द इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर लेस कॉमन कंपेयर टू केमिकल इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो एज यू कैन सी all the five statements are correct, hence you will choose the D as the correct answer. जो सारे statements हैं, सारे के सारे statements correct हैं। ठीक है, चलो we'll go to the next question then. Okay, it's the 126 question. Which of the following functional characteristics of muscles is correctly matched with its appropriate descriptive term? Elasticity, excitability, extensibility, and contractility. ओके, तो थोड़ा मैं आपको टाइम देती हूँ यहाँ पे, आप देखिए ऑप्शंस को एंड ट्राई टू एनालाइज विच वुड बी द करेक्ट आंसर। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी? बेटा इलास्टिसिटी क्या है? इफ यू रिमेम्बर, हम लोग बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं, okay? चब्बी चीक्स डिम्पल चिन, याद है? तो ये क्या है? यही तो इलास्टिसिटी है। मतलब हमारे जो मसल फाइबर्स हैं वो रिकॉइल होते हैं, रिज्यूम टू इट्स रेस्टिंग लेंथ। आपने इसको स्ट्रेच किया, क्या स्ट्रेच करने के बाद ऐसे ही हो गया क्या ये? ऐसे ही है नहीं ना, वापस जा रहे हैं ना अपने प्लेस में। तो इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ फाइबर। ओके, रिज्यूम टू इट्स रेस्टिंग लेंथ। तो जो ये मैचिंग है इलास्टिसिटी का, वो बिल्कुल करेक्ट मैच है। ओके, इलास्टिसिटी मतलब आप इसको जितना भी खींचो ये वापस अपने पोजीशन में जाएगा। नाउ व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी हमारे चेंजेस आप देख सकते हो एनवायरमेंट में, तो उसके रिस्पॉन्स, ओके, वो एक्साइटेबिलिटी है। ठीक है, जैसे समझ लो बारिश आते आते एकदम से धूप आ गई, आप बोलोगे अरे यार इतनी धूप कहाँ से आ गई? तो वो जो एक्साइटेड कंडीशन है कि अरे यार धूप आ गई, तो ये क्या है? ये अब चाहे इनसाइड बॉडी हो आउटसाइड बॉडी हो, तो इसी को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। गर्मी से तुम एक्साइट हो गए। ठीक है, देन एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब जिसकी स्ट्रेच
हो गई उसकी एबिलिटी, तो एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड। ओके, तो वो एक्सटेंसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है। तो देन कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है बेटा? एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड। जब उसको एडिक्वेटली स्टिमुलेट करो तो वो कुछ समय तक, ओके, तुम क्या करोगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रख सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता रही सकती हूँ, आपको अपने होमवर्क करके नहीं आए, आपकी टीचर आपको पनिशमेंट दे रहे हैं कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तब ये जो आप हाथ ऊपर करके खड़े होते हो, ये क्या हो रहा है, आपके जो हाथ के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये आप फोर्सिबली कर रहे हो, तो कुछ टाइम तक आप करके रख सकते हो इसको। ओके, बट पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे क्या? नो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो एक शॉर्टन टाइम के लिए होता है, आप फोर्सिबली कर सकते हो ओनली फॉर अ वेरी लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब हमको क्या पता चला, जो सारे टर्म्स है ना वो करेक्टली मैच हो रहे हैं, इसीलिए हमने ऑप्शन चूज करना है डी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड विद देयर अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टिव टर्म। ठीक है, चलो, सो दैट्स व्हाट इज रिटर्न हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of plant tissue is being described by the given statements? कि कौन सा प्लांट टिश्यू है वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में डिस्क्राइब हुआ है। It consists of long, narrow cells with thick and lignified cell walls, having a few or numerous pits. They are dead and without protoplasts. On the basis of variation in form, structure, origin, and development, it may be either fibers or sclerites. It provides mechanical support to organ. अब options है कि I'll give you 15 seconds. इतना भी जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो 5 सेकंड में आपको आंसर पता हो जाना चाहिए। फिर भी देखो, look at the options and try to analyze the answer. Okay, so I have given you enough time. Let's see. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स हैविंग फ्यू एंड न्यूमरस पिट्स। याद आ रहा है? ये बिल्कुल स्क्लीरन काइमा का ही स्टेटमेंट मुझे लग रहा है। एंड दे आर डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। अब लग रहा था, अब तो कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि बिना प्रोटोप्लास्ट के हैं, डेड हैं, तो बिल्कुल स्क्लीरन काइमा है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, दे माइट बी, दे कैन बी फाइबर एंड स्क्लीरेट्स। अब तो 100% कंफर्म हो गया कि हाँ भाई, हम लोग स्क्लीरन केमा की ही बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स नॉट इन द एनिमल्स बट इन द प्लांट्स। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, इट इज अ बी। ठीक है, स्क्लीरन केमा इज द वन, डिग्निफाइड, थिक वॉल्स। ओके, तो न्यूमरस स्पिट्स होते हैं, डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इसमें फाइबर्स एंड स्क्लीरिड्स होते हैं विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, चलो, तो इसमें आप यहाँ पे वही चीज लिखा है बेटा, आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़े हो इसको। ओके, सो स्लीरन खैमा इज द आंसर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 134 क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ ग्राफ रिप्रेजेंट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का रिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉम द गिवन लिस्ट चूज द करेक्ट फैक्टर्स विद द शिफ्ट दैट ग्राफ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, देखो बेटा, हम सब ने ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा है। ओके, तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो सकता है, राइट साइड भी शिफ्ट हो सकता है, याद है हमको। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, तो क्या क्या यहाँ पे चीजें बदल सकती हैं। तो आपको चूज करना है कि अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है हमारा ग्राफ, तो विच वुड बी द करेक्ट पॉइंट्स हियर। ओके, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, आपको 30 सेकेंड्स दूंगी, याद करो। ओके, ट्राई टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट्स विच आई हैव टॉट यू। मैंने आपको लास्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये, याद कीजिए प्लीज। ओके, चलो, आई हैव गिवन इनफ टाइम टू यू। तो अभी ग्राफ देख लो बेटा। सो ग्राफ के यहाँ पे आप वाई एक्सिस में देख सकते हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मैंने आपको सैचुरेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, एंड यहाँ पे इन द एक्स एक्सिस यू विल सी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो बेटा, सोल्यूशन है,
The left shift in the oxygen dissociation curve indicates hemoglobin has a higher affinity for oxygen. ओके तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन, मीनिंग इट बाइंड्स ऑक्सीजन मोर रेडिली एंड रिलीजेस इट्स लेस। ओके, रिलीज रिलीज करेगा हल्के से और रेडिली बाइंड करेगा ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? देखो, फैक्टर्स दैट शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट जनरली इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लेसर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, that means less acidic conditions that favor the oxygen binding. Okay, low, partial pressure of carbon dioxide and the lower carbon dioxide level. Okay, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने वाली जो एबिलिटी है ऑक्सीजन की वो भी कम होती है। लोअर टेम्परेचर, ओके, तो लोअर टेम्परेचर दैट इज बिकॉज कूलर टेम्परेचर फेवर द ऑक्सीजन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लेफ्ट शिफ्ट होने पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट चॉइस होना चाहिए डी। ठीक है, आपका करेक्ट चॉइस होना चाहिए डी, दैट इज BCE। ओके, तो बी देखो लेसर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, सी हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज द आंसर। यही तो हमने देखा था अभी, देखो लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो टेम्परेचर, तो डी इज द आंसर। ठीक है, अगर ये राइट साइड शिफ्ट होता तो इसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट? ओके, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स सेक्रेट adrenaline. Myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. Non-myelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath. Spinal and cranial nerves are made of non-myelinated nerve fibers only. ओके, चलो, तो आई होप आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। मैंने अभी पढ़ा भी इसको, स्टेटमेंट को, आई जस्ट नाउ रेड ऑल्सो। ऑलराइट, सो लेट्स चेक नाउ। ओके, अभी हम इसको चेक करते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स सेक्रेट अड्रेनलिन, तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बेटा। क्यों? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो सिनेप्टिक लेफ्ट है वो एक गैप है बिटवीन द न्यूरॉन्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। आई होप यू रिमेम्बर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, आपको याद होगा ना बेटा, हमने पढ़ा था मसल। ओके, मसल का मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, वहां पे क्या होता है कि तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। ओके, तो असिटाइल choline भी कह लो, असिटाइल कोलिन भी कह लो। ओके, तो कुछ भी होगा, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो वो एड्रेनलिन तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन इज रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विथ Schwann cell, बिल्कुल सही। which form myelin sheath around the axon, बिल्कुल सही। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। Non-myelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell. Yes, that does not form a myelin sheath. Okay, so ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो लास्ट डी देखते हैं। Spinal and cranial nerves are made up of non-myelinated nerve fibers only. No, ये both दोनों से बनते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड दोनों से बनते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंड डी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, डी, बी एंड सी आर करेक्ट वाइल ए डी आर इनकरेक्ट, तो डी इसका आंसर है बेटा। ठीक है, चलो 145, consider the following. H zone disappears, A band shortens, Z line move apart, M line disappears. Which of the following options includes changes in muscle fiber during contraction? Okay, so I'm giving you some time. Look at the options and the statements and try to get an answer. Okay, we'll see here then. So here
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, ठीक है। हेड जोन डिसअपियर्स, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, ये हेड जोन, ये हेड जोन देखो यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट ही है, इट इज डिसअपियरिंग, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो, ए बैंड शॉर्टन्स, ओके बिल्कुल शॉर्टन होगा, ये होगा या नहीं होगा, देखो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए बैंड डजंट शॉर्टन, देखो बेटा ए बैंड लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट शॉर्टन, ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, बहुत बार पूछा गया है कि हाँ भाई बताओ ए बैंड शॉर्टन होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा बेटा, जो ए बैंड है वो शॉर्टन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जेड लाइन मूव्स क्लोजर टुगेदर, ये भी सही चीज है, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग होता है जेड लाइन, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्लोजर आता है, देखो यहाँ पे दूर है यहाँ पे क्लोजर है, बिल्कुल ये भी ठीक है। एम लाइन डज नॉट डिसअपियर, ये गलत है, ओके। एम लाइन जो है वो डिसअपियर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एम लाइन रिमेन्स प्रेजेंट बट डज नॉट डिसअपियर, ओके। तो ये चीजें आपको पता चल गई, तो इससे आप क्या बता सकते हो, दैट इज फॉर द 145 क्वेश्चन, तो आपका जो आंसर होगा बेटा दैट इज बी, ठीक है। तो वो बी आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए और डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो एम लाइन डिसअपियर्स, बिल्कुल सही है, एंड देन ए बैंड शॉर्टन्स, ये भी सही है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट, मतलब सही है, मतलब इनकरेक्ट वाला पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर। चलो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So which of the following statements are correct for all cell cycle? Sorry, for all cycle. Okay, तो सारों के लिए. So cell cycle is the sequence of events involving growth and division of a cell from time of its formation to its own division into daughter cell. Cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. The replicated chromosome, that is DNA, are distributed to daughter nuclei during cell division. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिविजन चैप्टर। तो चलो देखते हैं। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूड इन्वॉल्विंग ग्रोथ, हाँ बिल्कुल ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, डिवीजन इन्वॉल्व होता है, हाँ होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन इनटू डॉटर सेल, बिल्कुल सही, ओके। सो सेल साइकिल का ये जो स्टेटमेंट है ये परफेक्टली फिट बैठता है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेल ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहता है, ठीक है, डिवाइड होगा फिर ग्रो होगा, डिवाइड होगा फिर ग्रोथ होगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं है। DNA synthesis occurs only during one specific stage in a cell cycle, ये बिल्कुल सही है, कौन सा है, दैट इज, कैन एनीबडी टेल मी, मतलब लाइव क्लास तो नहीं है बट फिर भी आप दिमाग में तो ला सकते हो, है ना, एस फेज, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग सेल डिविजन, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो वी विल चूज डी एज द ऑप्शन, के तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पे, क्लियर। So you can see all the four statements are correct, correct, correct statements. Okay. Next question. Recognize the figure given below and find the correct labeling. ये भी बहुत easy question है. This is also one of the easiest questions. Okay. Schwann cell, synaptic knob, myelin sheath, axon terminal. Okay. So options are these. So I'm giving you only 5 seconds here. सिर्फ 5 सेकेंड में आपको बताना है इसका आंसर, तो दिमाग में रखो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ए क्या है, आप ए देख सकते हो बेटा, ए इज एन एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल इज ए, ओके। तो बी क्या है, बी सिनॉप्टिक नॉब है, ओके, बी इज सिनैप्टिक नॉब। सी जो है वो श्वान सेल है, ठीक है, सो सी इज श्वान सेल, एंड डी इज माइलिन टीथ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अब देख लो कौन सा मैच हो रहा है, A2 नहीं, A4, हाँ रुको देखते हैं, A4, B2 हाँ सही, C3, नो नो C3 नहीं है,
C1 है, तो बेटा आंसर इज सी। ओके, जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डायग्राम, के डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है, इतना डिफिकल्ट डायग्राम तो है नहीं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे बताना है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct about prokaryotic genetic material? Okay, prokaryotic genetic material के बारे में कौन से statements correct हैं? DNA is naked, that is without histones. DNA is usually circular, single chromosome. Outside the genomic DNA, small circular DNA is also present in many bacteria. The extra genomic DNA is or are plasmids. Okay, so again very easy. टेक योर टाइम। ओके, आप 10 से 15 सेकेंड ले सकते हो इस क्वेश्चन के लिए एंड ट्राई टू रिमेम्बर थिंग्स। याद होगा आपको 11th क्लास के फर्स्ट बिगिनिंग चैप्टर्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वो अगर आपको याद है तो इजी हो जाएगा। ओके, डीएनए इज नेकेड, ओके, एंड विदाउट हिस्टोन, ये प्रोकैरियोट के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यूकैरियोट में बेटा हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। डीएनए इज यूजुअली सर्कुलर एंड सिंगल क्रोमोसोम, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, देन outside the genomic DNA, small circular DNA is present in many bacteria, that is called as plasmid, वो भी बिल्कुल ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड प्लास्मिड। चलो, चारों स्टेटमेंट्स ही सही स्टेटमेंट है। इजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी इजी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत इजी था। ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखो यहाँ पे आप करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द लीफ? के लीफ के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो इसके लिए बेटा मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। ओके, टेक 30 सेकेंड्स एंड ट्राई टू एनालाइज विच इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम तो ऐसे क्वेश्चंस दे रही हैं जहाँ पे ऑल ऑफ दीज ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज लिख देते हैं। नहीं, ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, चलो, आई हैव गिवन एनफ टाइम फॉर यू, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, हाँ, सो टाइम तो हो गया आपका, अभी देखते हैं। लीफ इज लैटरल जेनेटिकली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लीफ इज अ लैटरल, लैटरल ऐसे है, टर्मिनल तो बिल्कुल नहीं है, लैटरल है। ओके, एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, बिल्कुल सही। ठीक है, देन इट डेवलप्स एट द नोड एंड बेयर्स अ बड इन इट्स एक्सल। ओके, तो बेटा आप देखो, कोई भी स्टेम होता है ना, तो वहां पे एक नोड होता है। ठीक है, तो वहां पे उस नोड से क्या निकलता है, यहाँ पे ऐसे करके लीफ निकलेगा। ठीक है, तो लीफ अगर विथ स्टॉक है तो उसको पीटियोल कहते हैं, विदाउट स्टॉक है तो उसको सिसाइल लीफ कहते हैं। ओके, मतलब देखो ऐसे रहेगा तो ये है पीटियोल, ये पीटियोल है स्टॉक के साथ, यहाँ पे स्टॉक नहीं है तो ये सिसाइल है। ठीक है, बट नोड से निकलता है तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, देन लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम, बिल्कुल नहीं, लीव्स रूट एपिकल मेरिस्टम से बिल्कुल नहीं निकलते। ओके, एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल, नो, बिल्कुल नहीं। ओके, देन दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन, नो, लीव्स आर नॉट द वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स आर इंपॉर्टेंट structures for the reproduction. ठीक है, तो 3 and 4 are wrong, 1 2 can be correct statements, hence A is the correct option. ठीक है बेटा, अगर आपको और ज्यादा याद है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में दिखाता है, एंड जो साइमोज है वो बैसिपिटल। मैम क्या मतलब है, हम तो भूल ही गए बेटा, सिंपल है। जो एंगर लीनो फ्लावर्स होते हैं वो टॉप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, ये टॉप में एंगर फ्लावर्स होते हैं, और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, विच इज सीन इन द रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ओके, बेसिपिटल, जो बेसिपिटल ऑर्डर है वो आप देखोगे इन द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। आपको याद है जास्मिन? तो जास्मिन में क्या होता है, जो सेंट्रल वाला है वो बड़ा होता है, वो फर्स्ट बॉर्न होता है, साइड वाले
वो छोटे होते हैं, सेकेंड बॉर्न होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिपिटल है, दिस इज साइमोस एंड दिस इज रेसिमोस। ओके, बट यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वही गलत है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम रूट टिपिकल मेरिस्टम, नो दे ओरिजिनेट फ्रॉम शू टिपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो 1 2 करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो। हाँ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीअब्सॉर्प्शन इन दिस रीजन इज मिनिमम, दिस रीजन प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलारिटी। बेटा तुम ये पढ़ लो, फिर मैं भी पढ़ूंगी, तुम कंफ्यूज हो जाएगी, यू रीड इट। ओके, सो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन। अभी देखते हैं, चलो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, दिस इज टेकन फ्रॉम द यूरिन फॉर्मेशन पार्ट, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो आपको याद आ रहा है डायग्राम, ये मैंने आपको लास्ट ईयर में समझाया था 11th में, सेम डायग्राम लेके, इसीलिए मैंने वही सेम डायग्राम यहाँ पे चिपकाया है ताकि आपको इजीली समझ आए। ओके, मैंने आपको बताया था बेटा ऑस्मोलारिटी जो है वो लोएस्ट होती है 300, हाई होती है 1200। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, दिस अकर्स बिटवीन द वैसा रेक्टा एंड द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो इनके बीच में होता है। अब देख लो यहाँ पे, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से 300, ओके, ऑस्मोलारिटी कम है, यहाँ पे बढ़ती जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होगा, वहां पे ऑस्मोलारिटी ज्यादा रहती है। तो क्या होता है बेटा, ऑस्मोलारिटी ज्यादा रहती है तो उसको यहाँ से पानी बाहर निकलता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, टू ट्राइंग टू मेक इट न्यूट्रलाइज्ड। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 120 हो जाता है हाई ऑस्मोलारिटी। क्योंकि अब ये हाई ऑस्मोलारिटी हो जाता है तो अगेन यहाँ से सोडियम निकालना पड़ता है, तो सोडियम बाहर निकालो। तो यही चीजें होती रहती हैं। तो डिसेंडिंग वैसा रेक्टा में क्या होगा, यहाँ पे उसका ऑपोजिट होता है। लूप ऑफ हेनले में क्या चलेगा, फिल्ट्रेट जाएगा। ओके, वी डोंट कॉल इट एज यूरिन, अभी यूरिन नहीं बना है, अभी फिल्ट्रेट है। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट मूव होता है, वैसा रेक्टा में ब्लड मूव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसेंडिंग वैसा रेक्टा, अगेन 300 लेस ऑस्मोलारिटी ब्लड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सोडियम से जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में था उसको एब्जॉर्ब करके ऑस्मोलारिटी बढ़ाएगा 1 to 1200। ओके, अब यहाँ पे देखो इसके सराउंडिंग में तो पानी था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के, तो उसको एब्जॉर्ब करके अगेन ऑस्मोलारिटी कम होते जाती है। तो इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक डायरेक्शन में फिल्ट्रेट मूव हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में ब्लड मूव हो रहा है, और मूव होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम एंड वाटर एंड दूसरे कुछ पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज यहाँ पे एक रूल पता होनी चाहिए, क्या है मैम रूल, देखो। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इसको हम कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टिंग लिम्ब, सॉरी कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। क्यों कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब? क्योंकि इट इज ओनली परमेएबल टू वाटर, क्योंकि उसका जो लेयर है वो वाटर के लिए ही परमेबल है, वाटर ही बाहर जा सकता है, सोडियम नहीं बाहर जा सकता डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। ठीक है, अगर मैं असेंडिंग लिम्ब की बात करूं तो वो डाइल्यूटिंग लिम्ब है, मतलब इट इज परमेएबल टू ओनली सोडियम। ओके, सिर्फ सोडियम ही वहां से बाहर निकल सकता है। अगर आप ये एज अ लॉ याद रख लो ना, तो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इजी होगा। ठीक है, अब इस बेसिस पे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो रीअब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन इज मिनिमम, हाँ मिनिमम होता है, बट कौन सा रीजन में वो देखते हैं, अभी ये स्टेटमेंट से कुछ नहीं पता चला, देखते हैं। दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कुछ समझ आ रहा है? हाँ हाँ, its descending loop is permeable to water but impermeable to electrolyte. Okay, ascending limb is impermeable to water but allows the electrolyte actively or passively. तो इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये लूप ऑफ हिनले की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इन डिसेंडिंग लिम्ब फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक, इन असेंडिंग लिम्ब फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक। देखो, ओके, असेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे हाइपोटोनिक है, डिसेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये किसकी बात हो रही है, डेफिनेटली लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है, पीसीटी डीसीटी और बोमन्स कैप्सूल की तो बिल्कुल नहीं। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में आओ, रीअब्सॉर्प्शन इन दिस रीजन इज मिनिमम। बिल्कुल बेटा, लूप ऑफ हेनले में रीअब्सॉर्प्शन कम होता है, ज्यादा होता है पीसीटी में। पीसीटी में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलो, सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। तो हाँ, सर दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन है, यू रीड द क्वेश्चन. Okay, so given below is a diagrammatic representation explaining the mechanism of breathing. Look at the diagram and read the options. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम. ओके, हाँ. चलो अभी हम लोग कुछ देखते हैं, ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा देख के आते हैं बेटा. व्हाट इज ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. व्हाट इज इंस्पिरेशन? Active intake of air from atmosphere into lungs. Expiration, passive expelling of lungs, from, one second, sorry. ओके, सो पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स. ठीक है, तो बाहर जाना एक्सपिरेशन, अंदर आना इंस्पिरेशन, ये तो सबको पता है. ठीक है, अब बेटा कुछ लॉज हैं यहाँ पे भी. जैसे समझ लो नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है. इनहेलेशन में होता है यूएफओ, याद आ रहा है कुछ? अपवर्ड फॉरवर्ड आउटसाइड. जब आप सांस लेते हो इनहेल, तो आपके जो यहाँ पे थोरैक्स रीजन है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा एंड आउटसाइड मूवमेंट करेगा. एक्सेल में डाउन. अब बाहर करो, डाउनवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट एंड इनसाइड. तो अब ये रिप्स की बात हो रही है. ओके, रिप्स इनहेलेशन में यूएफओ, उसका ऑपोजिट होता है एक्सहेलेशन. अब अब जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में रिलैक्स करते हैं. ओके, तो कहाँ पे है मैम ये इंटरकोस्टल मसल्स? दिख रहा है आपको? ये इंटरकोस्टल मसल्स है. दिस आर रिब्स, दिस इज द फ्रंट पार्ट दैट इज स्टर्नम. तो ये रिब्स के बीच वाला जो मसल्स होते हैं वो है इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, अब डायफ्राम की बात करते हैं. डायफ्राम क्या होता है? वो फ्लैटन होता है इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में डूम शेप बनता है. ठीक है, ये आपको पता है. अब इसको आप बेटर एक्सप्लेनेशन से कैसे पढ़ सकते हो? विद द प्रिंसिपल, हमेशा याद रखो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही मूव करती है. ओके, अब ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मतलब अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा. ये आपको पता होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे तुम, ठीक है, इनहेलेशन में क्या हो रहा है बेटा? जो प्रेशर है वो कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है ना हवा. ओके, इनहेलेशन में हवा बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर आ रही है, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है. तो अगर प्रेशर लंग्स में कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा. अंडरस्टूड? अब यही चीज एक्सेलेशन में तुम देखोगे, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या है, वो कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि एक्सेलेशन में अंदर से लंग्स से हवा बाहर जानी है, तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा है. लंग्स में प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है. समझ में आ रही है बात? अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ो, तो अभी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, तो डायफ्राम बिकम्स डूम शेप्ड बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल विच डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी. बिल्कुल नहीं, ये गलत है. Contraction of external intercostal muscle shift the rib inward and out downward. No, ये भी गलत है. ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने देखा था ना बेटा. अब देखो, जो डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड अपवर्ड विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी. बिल्कुल देखो, यहाँ पे thoracic कैविटी की वॉल्यूम भी कम हो रही है, डूम भी रिलैक्स्ड है और आर्च्ड है. ओके, तो मुझे सी सही लगा अब तक. फोर देखते हैं. Volume of thoracic cavity is decreased due to the relaxation of phrenic muscle and contraction. No, no, no. नहीं, ये भी गलत है. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा. ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होता है. ठीक है, तो वो वाइस वर्सा चलेगा. ठीक है, जैसे आप ने यहाँ देखा, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जो जहां से एयर जा रही है वहां पे हाई प्रेशर, जहां पे जाएगी वहां पे लो प्रेशर, और जहां पे लो प्रेशर है वहां ज्यादा वॉल्यूम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, चलो. सो सेम चीज यहाँ पे मैंने बताई है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. तो एआईटी पेपर से मैंने इतने चीजें निकाली हैं बेटा. अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट रहता है तो यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर रेस्पेक्टिव टीचर इन द स्कूल्स एंड ट्राई टू लर्न अ मोर ऑन दिस. ठीक है, तो नेक्स्ट एआईटी में हम मिलेंगे. तब तक बेटा आपको क्या करना है, 11th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि नेक्स्ट एआईटी आप अच्छा कर सको. ठीक है, thank you so much for your time and listening to me attentively. Okay, till then.
to the next meeting. Till then, bye bye. Thank you so much.